यानी कि उनके कंट्रोल को कम करके क्या कहीं ना कहीं आरजेडी वहां पर हावी होना चाहती है? कुछ प्लान चल रहा है लालू प्रसाद यादव के मन में, तेजस्वी के मन में? देखिए, और इस वक्त आप सीधे गुजरात के अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है जिसमें कि केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जय हिंद। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदेशी नेतृत्व, सेवा, सुशासन और भगीरथ प्रयास के महायज्ञ से आज अर्जित हो रहा है भारत का अविरत सर्वांगी विकास। जनसेवक के रूप में 20 सालों में देश कल्याण के संकल्पों को सिद्ध करने वाले न्यू इंडिया के स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री जी के सुशासन को प्रतिबिंबित किया गया है इस पुस्तक में। आज हमारे लिए ये हर्ष की बात है कि इस पुस्तक के गुजराती संस्करण के अनावरण के अवसर पर आज हमारे बीच विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे सभी महानुभाव उपस्थित हैं जो किसी न किसी तरह मोदी जी से एसोसिएटेड रहे हैं। हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आज मंच पर महानुभावों का अब विधिवत स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से कि आप माननीय केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का इस अवसर पर स्वागत अभिवादन करें। एक तुलसी के पौधे और शॉल से हम अभिवादन कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी से कि आप गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी का स्वागत अभिवादन करें। शॉल और तुलसी के पौधे से हम अभिवादन कर रहे हैं महानुभावों का। धन्यवाद। और अब अनुरोध करूंगी एडीजी पीआईबी श्री प्रकाश मखदूम जी से कि आप माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डॉक्टर एल मुरुगन जी का इस अवसर पर स्वागत करें। श्री प्रकाश मखदूम जी। हम भी बहुत बहुत तालियों से इन महानुभावों का अभिवादन करें। धन्यवाद। I now invite Dr. L. Murugan, Honorable Union Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry and Dairy for his welcome address. Please, sir. Honorable Defence Minister of India, respected Sri Rajnath Singh ji, Honorable Chief Minister Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel ji, friends from media, ladies and gentlemen, vice chancellors and officers from the central government and state government, namaste to you all, vanakkam for you all. This is the land of Gujarat, the land of Mahatma Gandhi. From this land, the journey of Susasan, good governance,
Garib Kalyan started some 20 years ago. The book Modi at 20, Dreams Meet Delivery captures the essence of this journey. To release its Gujarat version today, we have among us Honorable Defence Minister, respected Sri Rajnath Singh Ji. Under his leadership, we have our borders secure and forces will trained and motivated and ready to go to any extent to protect our country. Respected Sri Rajnath Singh Ji, you have seen this journey of dreams made delivery from very close quarters. Despite your busy schedule, you have taken out some time to release this book today. We are thankful to you. I extend a warm welcome to you, sir. Today we have our guest of honor, the Honorable Chief Minister of Gujarat, who is effectively taking forward Modi ji's work in Gujarat, respected Bhupender Bhai Patel ji. I welcome you for this function, sir. I welcome ministers of Government of Gujarat, members of Legislative Assembly, members of Parliament, senior officers of central government and state government, vice chancellor, educationalists from different universities. I have those who assembled here. I also welcome our friends from media and other dignitaries who are assembled here. Friends, 2 decades ago, our dynamic leader Sri Narendra Modi ji arrived with his model of good governance, first as CM Gujarat and then from 2014 as a Prime Minister of India. His model of good governance is all inclusive. This model is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. It is because of all, participation of all and participation of all. It emerges from Modi ji's deepest concern for the vulnerable section of the society who are Dalit, tribal, women and youths. Ladies and gentlemen, Modi at 20, Dream Meets Delivery is an equivalent and insightful attempt to unravel and unravel layer by layer the miracle that our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. It helps to understand his policies through a perspective from the eminent personalities. The book has forwarded of late Lata Mangeshkar, our Honorable Minister Sri Home Minister Sri Amit Shah ji, and P.V. Sindhu, Nandan Nilekani, Ajit Doval ji, and many others have extended. They written 20 chapters in this book. And for this release of its Gujarat version, we all have assembled here today. I express my gratitude to the respected Sri Rajnath Singh Ji, Sri Bhupender Bhai Patel Ji and other dignitaries present here. I extend my heart welcome to you all on behalf of our Minister Sri Anurag Singh Thakur Ji and on behalf of Ministry of Information and Broadcasting. Welcome you, sir. Thank you. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your warm welcoming words. देवियों और सज्जनों, अब आइए देखते हैं इस पुस्तक के बारे में ये ऑडियो विजुअल प्रस्तुतिकरण। एवी प्लीज। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नेता, राजनीतिज्ञ, दीर्घद्रष्टा 20 વર્ષની સફરમાં શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઘણી ભૂમિકાઓ ભજવી છે। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના 3 ટર્મના શાસનકાળમાં તેમણે સામાજિક અને આર્થિક અવ્યવસ્થા સામે ઝઝૂમતા રાજ્યને ભારતના સૌથી સમૃદ્ધ અને ઝડપથી વિકસતા રાજ્યોમાંથી એક બનાવી દીધું। मैं मॉडर्नाइजेशन का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट સતત 2 ટર્મ વડાપ્રધાન તરીકે પણ તેમણે પોતાની દીર્ઘદ્રષ્ટિ સાથે સામાજિક અને આર્થિક સુધારાઓ કરી ભારતને એક આત્મનિર્ભર દેશ તરીકે વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું, જેના કારણે 1.3 અબજ ભારતીયો બન્યા પહેલાથી વધુ સશક્ત। એક રાજનીતિજ્ઞ તરીકે તેમણે પરસ્પર વૈચારિક મતભેદ ધરાવતા રાષ્ટ્રોમાં પણ સન્માન મેળવનારા વિશ્વના ગણ્યા ગાંઠ્યા નેતાઓમાં સ્થાન મેળવ્યું। મોદી એટ 20 સપના થયા સાકાર।
સતત 20 વર્ષ સુધી લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાયેલી સરકારના વડા તરીકે શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઐતિહાસિક સફરનું વર્ણન કરવા બૌદ્ધિકો, નીતિ નિર્માતાઓ, અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ અને વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતોને એક મંચ પર લાવવામાં આવ્યા. સૈદ્ધાંતિક અને વિશ્લેષણાત્મક અવલોકનો અને શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે કામ કરવાના અનુભવોના નિચોડ સમાન મોદી એટ 20 એમના 2 દાયકાના સર્વગ્રાહી દ્રષ્ટિકોણને રજૂ કરે છે. 7 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાયેલી સરકારના વડા તરીકે 20 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે 12.5 વર્ષ અને ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે 8 વર્ષ પૂર્ણ કરવા એ પોતાનામાં જ એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે. 2001 પહેલા શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સક્રિય રાજનીતિમાં કોઈ પણ પદ ઉપર ચૂંટાયા નહોતા અને એ પછી સતત 5 ચૂંટણીઓમાં અપરાજિત રહ્યા. 2002, 2007 અને 2012માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે અને 2014 અને 2019માં દેશના વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટાયા. સમયની સાથે તેમની લોકપ્રિયતા પણ વધતી ગઈ. ચાલો આપણે વિવિધ પ્રકરણોના લેખકો પાસેથી સાંભળીએ એવી વિશેષ બાબતો જેનો તેમણે તેમના પ્રકરણોમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. Narendra Modi's unstinting support to entrepreneurs, to the startup world, to people who build the nation through enterprise has been unstinting over his entire journey. And I've had the privilege of being associated with him through this entire period of 20 years. Modi ji has repeatedly emphasized that our nation must transition from women's development to women-led development. In my article, I have written that what a modular approach meant to him. How one project led to another project, then to the third project, and ultimately the final message was well-being of the masses. For him, it is nation which matters, and he always thought that he lived for the nation. Given a true incident, 20 years back I met mother and a child. A mother was a cook, a child was going to school, and I met them and I talked to them. The mother told me that she wants her daughter should become a receptionist, and that is her aim in life. Now the girl has become an entrepreneur. I asked her why it happened, how it happened, and what is the reason. She said, I have changed in 20 years. Government is extremely supportive in all their schemes, and she went on telling that how her parents have a bank account. A great leader can inspire people. He can bring a wind of change in many directions, and that is what has happened in our country. Gujarat's agriculture achieved a tremendous rate of growth of 9.2% per annum. This is unheard of in the Indian history of agriculture in any state. I would say this is the first time in the history of thousands of years of India. India has exported 20 million tons of rice in 21-22 in a global market of about 50 million tons. PM Modi says that India's attitude towards meeting its goals has changed from chalta hai to badal sakta hai, which has struck a chord with me. This is the same attitude that a young person brings to whatever he or she approaches. It is the same attitude that PM Modi has shown in governance too. I've looked deeply at the environmental and ecological leadership provided by Mr. Modi, including on issues related to climate change. Mr. Modi has shown that development and sustainability can coexist. Our culture has been, in a sense, under attack for a long time. And my chapter explores what Prime Minister Modi has done consistently, and even earlier what he did in his role as a Chief Minister. Prime Minister Modi has focused not just on Kashi Vishwanath Ji temple, but one explores various other temple towns that have been revived. And it's not just the worship places of Hinduism, but the worship places of all other religions that exist in India. Something unique about the Prime Minister is his ability to carry out schemes on scale. So we mentioned Aadhaar.
then there was Jan Dhan, Swachh Bharat. Now we are seeing another very, very big initiative underway, which is the Nal Se Jal. I asked a bystander why he supported Modi ji. The young boy confidently said, क्योंकि सपने दिखाना सिखाया है हमें मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने. People trust Modi ji because he delivers. It is his success that has strengthened public trust in his leadership. This book is not only a must-read for those interested in political science and governance, but it's also a masterclass in communications, in personal development, and in management studies. In last 7 years, he has brought a tremendous change, tremendous excitement, not only for India, but also for Indian American community. And I would really try to say that worldwide community, worldwide Indian diaspora. I worked in different parts of the world. I know how the health system works. No country in the world could have vaccinated 150 crore people in such a short period of time. It's simply not possible. But we have done it. So essentially, India has managed to prove that we can do amazing things provided we have a leader like Mr. Modi. It is his appreciation of the possibilities of technology which has enabled Digital India, now entering what is called as the tech decade or techade. And just as we use technology to build Aadhaar, the JAM Trinity, many more things are happening. India is a digital leader in financial transactions done digitally. And this again is thanks to the big push that Prime Minister Modi gave UPI in the years after 2016. A deeply nationalistic figure, someone who's almost driven by his desire to take India to a higher level, and the same nationalistic figure is actually very international, with an enormous curiosity about the world. So this nationalist, internationalist paradox that he represents is one part of it. The other, of course, is a leader who is very steeped in our history and culture, but who still realizes the promise of technology, who has a great belief in the power of science, who again uses one to reinforce the attractiveness and the strength of the other. There's a very strong orthodoxy about foreign policy. And I find it very fascinating about Prime Minister Modi that he had both the ability, the determination, and in some ways the vision to challenge that orthodoxy. I begin with how he actually, at the first swearing in, the idea of getting all our neighboring leaders to India, which itself was a departure from traditional diplomacy as we know it. So in that sense, in the domain of foreign policy, certainly was a breath of fresh air. Here is a man who dared to dream big, because India is a country of a size of 1.4 billion people that needs leaders who can imagine big initiatives and can implement them on a scale. I am particularly delighted that I was tasked with the responsibility of writing a chapter on thinking big and executing in scale. How do you deliver female empowerment is through sanitation. And the whole toilet program, providing toilets for every house, was a major campaign, a very, very successful campaign. As economists, we generally keep our focus on a few macro indicators. But if you look at the real economy of India, bringing down open defecation or giving access to over 100 million toilets within the first 4 or 5 years of governance, I think has been one of the biggest achievements of Prime Minister Modi. I tried to decode how and why Modi is winning elections continuously for 20 years with 3 assembly and 2 general elections with
full majority. In fact, he never sat on opposition benches. Over the years of my election study suggest winning election means winning the heart of the people, and it cannot be fake. Let's try to understand the Modi magic, the art and the science behind it. સમૃદ્ધિ અને સલામતી સાથે, તકો અને સમર્થન સાથે, સૌના સાથ સૌના વિકાસની ભાવના સાથે શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જાહેર જીવનનો 20 વર્ષનો સમયગાળો એક નવા યુગના નિર્માણથી ઓછો નથી. દરેક સવાર સાથે જાતિ, સંપ્રદાય, પંથ અને ધર્મના લોકોના ઉત્થાન માટેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા વધુ મજબૂત બની છે અને જન જન માટે પથદર્શક રહી છે, જે 1.3 અબજ ભારતીયોને વધુ ઊંચા ઉડવા માટે એક વિશાળ આકાશ પૂરું પાડે છે. આપણા યુગની આ મહત્વપૂર્ણ તવારીખ ઉપલબ્ધ છે તમામ રિટેલ આઉટલેટ્સ અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સ પર, જે બનશે તમારી ચર્ચાઓ અને વિચારણાઓનો સ્ત્રોત. हैप्पी रीडिंग. तो हमने देखे उन महानुभावों के कुछ विचार जिन्होंने इस पुस्तक में माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व, उनके कार्य और उनके साथ के अनुभवों को कलमबद्ध किया है. देवियों और सज्जनों, अपने सबल और सक्षम नेतृत्व से गुजरात की विकास यात्रा को विश्वसनीयता से आगे बढ़ा रहे हैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल जी. आओ सादर अनुरोध करिए माननीय मुख्यमंत्री श्री ने आपना प्रेरणादायी शब्दों માટે. રાજ્યના પાટનગર ખાતે આયોજિત મોદી એટ 20 સપના થયા સાકાર પુસ્તકના ગુજરાતી સંસ્કરણના વિમોચન પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આદરણીય રક્ષા મંત્રી શ્રીમાન રાજનાથસિંહજી, પ્રસારણ રાજ્યમંત્રી શ્રી એલ મુરુગનજી, ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, મારા સાથી સૌ મંત્રીશ્રીઓ, સંગઠનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, પ્રબુદ્ધ નાગરિકશ્રીઓ, ઉપસ્થિત અધિકારીગણ, આમંત્રિત મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. ગુજરાતની ધરતીના પનોતા પુત્ર અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન તથા વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના 2 દશકાના સફળ રાજકીય જીવન ઉપરના પુસ્તક મોદી એટ 20 સપના થયા સાકારના ગુજરાતી સંસ્કરણનું આજે વિમોચન થઈ રહ્યું. માન્ય રક્ષા મંત્રી શ્રી રાજનાથસિંહજી અને માહિતી પ્રસારણ રાજ્યમંત્રી શ્રી એલ મુરુગનની આ પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ આ આખાય પ્રસંગને દીપાવનારી બની છે. એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન રાષ્ટ્રહિતની સમર્પણ ભાવનામાં પોતાનું જીવન ખપાવી દે તે ઘટના ગુજરાતીઓ અને દેશ માટે ગૌરવની ઘટના છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના રાજનૈતિક ઇતિહાસમાં વિકાસની રાજનીતિનો નવો અધ્યાય રચ્યો છે. 2 દાયકાની તેમની આ સફળતા અને તેમના નેતૃત્વમાં દેશની વૈશ્વિક પ્રગતિની સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ આ પુસ્તકમાં થયું છે. 20થી વધારે મહાનુભાવોએ આ પુસ્તકમાં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 20 વર્ષના શાસનને આગવા દ્રષ્ટિકોણથી વર્ણવ્યું છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 20 વર્ષ એટલે સેવા, સુશાસન અને સમર્પણના 20 વર્ષ. આ 20 વર્ષની સફળ યાત્રાની ગાથાઓને પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરવામાં આવી છે. તેના ગુજરાતી સંસ્કરણનું આજે વિમોચન થઈ રહ્યું. દેશના લોકોએ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં જોડાયેલા વિકાસના સપનાઓ સાકાર થયા છે તેની પ્રતીતિ આ પુસ્તક કરાવે છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કાર્યોની સામાજિક રાજકીય અસર, તેમની સુશાસન રીતિ અને વિદેશ નીતિને કેન્દ્રમાં રાખી આ પુસ્તક લખાયું છે. કોઈ વ્યક્તિ દરેક પર દરેક ક્ષણ દેશને સમર્પિત કરી
સ્વને ભૂલી કાર્ય કરતી હોય ત્યારે તેમના વિશે લખવું એ તેમનું ઋણ ચૂકવવા સમાન છે. સમાજના વિવિધ વર્ગ વર્તુળમાંથી આવતા પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓની દ્રષ્ટિએ મોદી સાહેબના વ્યક્તિત્વના અલગ અલગ પાસાને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવ્યો છે. આ પુસ્તક મોદીજીના સદગુણો રૂપી સમુદ્રના પેટાળમાંથી મળેલો અમૂલ્ય ખજાનો છે. લ્યુક ટ્રસ્ટ ડિજિટલ ફાઉન્ડેશન અને નવભારત પબ્લિકેશને આ પુસ્તક સંપાદન અને પ્રકાશન કરવા બદલ અભિનંદન આપું છું. ગુજરાત આજે દેશનું રોલ મોડેલ સ્ટેટ ગણાય છે. ઉદ્યોગ, વેપાર, એક્સપોર્ટ, કાર્ગો હેન્ડલિંગ, ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, હાયર એજ્યુકેશન, રોજગાર, ટુરિઝમ, હેલ્થ અનેક ક્ષેત્રે ગુજરાત સર્વોત્તમ પ્રગતિ કરી દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. એવા સંખ્યાબંધ માનાંકો છે, રેન્કિંગ છે, જેમાં ગુજરાત દેશભરમાં અગ્રેસર છે. પરંતુ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારે રાજ્યની સ્થિતિ અત્યાર કરતા ઘણી જુદી હતી. એ સમયે ગુજરાતમાં વીજળી, પાણી, સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ જેવી પાયાની સુવિધાઓ પૂરતી ન હતી. આજે ગુજરાતનો જે માળખાકીય વિકાસ થયો છે તે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કુશળ નેતૃત્વને આભારી છે. તેમણે દેશની જનતાને વોટ બેંકની રાજનીતિને બદલે વિકાસ, ગુડ ગવર્નન્સ આધારિત રાજનીતિની ભેટ આપી છે. કોરોના મહામારી હોય કે યુક્રેન યુદ્ધ, વડાપ્રધાનશ્રીની વિદેશ નીતિના સારા પરિણામો દેશે જોયા છે. તેમનું એક કુશળ રાજનૈતિક વ્યક્તિત્વ ઉભરી આવ્યું છે. વિશ્વના લોકપ્રિય નેતા તેઓ બની ગયા છે. આવા રાષ્ટ્ર ઉપાસકનું ગૌરવગાન આ પુસ્તકના માધ્યમથી થાય તે સોનામાં સુગંધ સમાન છે. આપણે સૌને ખ્યાલ છે કે ભારત યુનાઇટેડ કિંગડમને પાછળ છોડીને હવે દુનિયાની 5મી સૌથી મોટી ઇકોનોમી બની ગઈ. હજુ 4-5 દિવસ પહેલા જ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડે ભારતમાં મોદી સાહેબની આગેવાનીમાં થયેલા મોટા સ્તરના સુધારા અને બદલાવની પ્રશંસા કરી છે. IMF એ વૈશ્વિક મંદીના માહોલ વચ્ચે ભારતને એક બ્રાઇટ સ્પોટ ગણાવ્યું છે. આ ગૌરવ સિદ્ધિઓ શ્રેય પણ વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરી લીડરશીપને જ જાય છે. કાશ્મીર અંગેની કલમ 370ની નાબૂદી, સર્જિકલ એર સ્ટ્રાઇક, વિસ્તારવાદી શક્તિ સામે દેશનું માથું ઊંચું રાખવું, રામ જન્મભૂમિ મંદિર શિલાન્યાસ, આ બધા કામ મોદી સાહેબ જેવા યુગ પુરુષ જ કરી શકે. સ્વચ્છતા અભિયાન, ઘર ઘર નલ સે જલ, આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ, આત્મનિર્ભર ભારત, આવા નવીનતમ વિચાર મોદીજી જેવા જનનાયકને જ આવી શકે. વડાપ્રધાનશ્રીની આવી જનસેવા પરાયણતા, રાષ્ટ્ર ગૌરવ ભાવના અને ભારત માતાને વિશ્વગુરુ બનાવવાની કટિબદ્ધતા આ પુસ્તકમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. આવા યુગ પુરુષ, જનનાયક વિશે, તેમના કાર્યો, વિચારો વિશે અવનવા પુસ્તકો લાખો લોકોને પ્રેરણા આપશે તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपनो। अब आइए मोदी एट 20 सपना थया साकार इस गुजराती एडिशन का विमोचन करने के लिए सादर अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं सभी महानुभावों से। बुक्स प्लीज। चार दशकों से गुजरात में एक प्रसिद्ध पब्लिकेशन के रूप में प्रस्थापित नवभारत पब्लिकेशन द्वारा इस पुस्तक का गुजराती संस्करण प्रकाशित किया गया है, जिसका विमोचन आज महानुभावों के करकमलों से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए मैं माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से सादर अनुरोध करती हूं आपके प्रेरक संबोधन के लिए। प्रेरक संबोधन। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, क्यों ये थोड़ा सा पोडियम कुछ हमारे लिए दिशा पड़ रहा है क्या?
वो कुछ ऊंचा है, ये ऊंचा है ना, वही ठीक है। थोड़ा ये दोनों क्या है, वो ठीक है। ओके। ये ठीक है। हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं हमारे साउथ, मिस्टर एल मुरुगन जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, जैसा हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने बतलाया और हमारे एल मुरुगन जी ने भी बतलाया, मोदी एट 20 इसके गुजराती संस्करण का आज विमोचन हुआ है। वैसे जिस समय यह पुस्तक छपी थी उस समय आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 20 वर्षों का समय गुजरा, लेकिन गुजराती संस्करण जो यहां पर उसका विमोचन कर रहे हैं, तो मोदी एट 20 की जगह मोदी एट 21। यह संयोग देखिए, गुजराती संस्करण का विमोचन करने का अवसर मुझे ही प्राप्त। अभी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन को एड्रेस करने के बाद सीधे मैं आया हूं और आधे घंटे के बाद आप सबके बीच यहां पर मैं मौजूद। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये सब संयोग क्यों बनते हैं, गुजरात के साथ हमारा क्या रिश्ता। बराबर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भले ही मैं गुजरात में नहीं पैदा हुआ, भले ही मैं गुजरात की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मेरी मां का नाम गुजराती देवी है। शायद इसीलिए ये संयोग मानता हूं। ईश्वर की लीला अद्भुत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी के बारे में जो कुछ भी मैं कहूंगा वो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जो कुछ भी उन्होंने काम किया है इसका एग्जैगरेशन नहीं हो। मैं सोच रहा था कि पहले मैं एक्सटेम्पोर्ड जैसे जनरल भाषण होता है वैसे जाकर मैं बोल दूं, लेकिन मुझे लगा जब तक कुछ पॉइंट्स लेकर लोगों के सामने मैं नहीं बोलूंगा तब पुस्तक के विमोचन में उस पुस्तक के साथ वह जस्टिस नहीं होती। इसलिए सामान्यतः पुस्तकों के विमोचन में पॉइंट्स लेकर ही हमको बोलना चाहिए। मैं मोदी जी के बारे में कह सकता हूं, अब वह केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है बल्कि या जननेता ही नहीं, मैं कह सकता हूं देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं जहां पर वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं वहीं पर एक बड़े समाज सुधारक के रूप में भी उनकी छवि निखर कर जन सामान्य के सामने आई। मैं जानता हूं कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट कहेंगे कैसे, कई बेटी पढ़ाओ, सफाई कर्मियों का पांव धोना, जाकर अपने हाथ से जूठे पत्तल उठाना, बोतल उठाना, एक नहीं ऐसे 15-20 कार्यक्रम तो उन्होंने अपने हाथ में ली। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर, यह दिखावे के लिए भी नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई ऐसा भाव होना चाहिए, वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है, सभी नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई काम करने वाला व्यक्ति होगा तो आप चाहे जो भी कही, लोगों को लगता है कि भाई अभी तो उसी पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए यह बातें बोल। बहन भाइयों, सामान्यतः मेरे स्वभाव पर आप जानते होंगे तो मैं ऐसा नहीं करता हूं। जो सच है वही बोलता हूं, जो सच है वही बोलता हूं। वर्तमान को सुधार कर वे अब
मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वर्तमान को सुधार कर अब वे अगले कई दशकों के लिए देश की दिशा को बदलने का काम कर रहे, आगामी कई दशकों के लिए देश की दिशा को बदलने का काम कर रहे। आप ये कहेंगे कि ये कैसे? अभी गुजराती में जब हमारे बोल रहे थे हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के डायरेक्टर जनरल का एक स्टेटमेंट, उसकी चर्चा उन्होंने की। क्रिस्टलीना जारी क्या कहा है उन्होंने? इंडियन डिजर्व्स टू बी ए ब्राइट स्पॉट ड्यू टू इट्स पार्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की डीजी का यह बोलना कोई सामान्य बात नहीं है। चारों तरफ अर्थव्यवस्था को लेकर अंधियारा हुआ छाया हुआ है। यदि कहीं पर रोशनी यदि दिखाई देती है तो भारत में रोशनी दिखाई देती है, भारत की अर्थव्यवस्था में रोशनी दिखाई देती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब हमारे मोदी जी कई दशकों के लिए देश की दिशा बदलने का काम कर रहे हैं, यानी भविष्य। अपने गवर्नेंस और फैसलों से वे भारत के भविष्य के नियंता बने। वे भारत के वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि मैं कहूंगा भारत के भविष्य के लिए इस समय काम कर रहे हैं। वर्तमान के लिए तो करते ही हैं, भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। और मित्रों, मोदी जी इतिहास की एक ऐसी लकीर है जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार उकेरी गई है। उकेरी गई का मतलब समझते हैं? गुजरात के लोग समझते हैं उकेरी गई है? अब पहली बार यह उकेरी गई है, तो आखिर यह मोदी मैजिक नहीं है तो क्या है? यदि कोई मोदी मैजिक कहता है तो इस पर लोगों को आपत्ति क्यों होती? मैंने पहले भी जब कहा तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि राजनाथ जी ऐसा कह रहे। मैं बोल चुका हूं और मैं फिर कह रहा हूं, दोहराना चाहता हूं। इस देश की नब्ज को पहचानने वाला और जनता से सीधा संवाद करने वाला महात्मा गांधी के बाद यदि कोई दूसरा नेता है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी। तुलना नहीं है। मैं जानता हूं जिनको इसमें कुछ निकालना होगा वो कहेंगे तुलना करें, तुलना नहीं है। जो नेतृत्व हुए हैं बात के, उनकी बात मैं कर रहा हूं। जनता के नब्ज को, जनता के मूड को पहचानना, जनता की नीड्स, जनता की आवश्यकताओं को पहचानना, एक सूक्ष्म दृष्टि जो उसके लिए होनी चाहिए, वह यदि किसी के पास है तो नरेंद्र मोदी जी के पास है। इसलिए बनी है बात। महात्मा गांधी ने देश के करोड़ों लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। अब मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने देश के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से देश के आम लोगों को जोड़ा। यही मोदी मैजिक, यही मोदी मैजिक। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे अनोखे नेता हैं जो देश में ध्वंस से नहीं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, रचनात्मकता से बदलाव की अलग रोशनी जगाते रहे। वे अपनी रचनात्मकता से देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान इस समय छेड़े हुए। आप कहेंगे कैसे? सोमनाथ देख लीजिए, भव्य स्वरूप किसने दिया है? फिर आइए केदारनाथ देख लीजिए, फिर आइए अयोध्या देख लीजिए, भव्य राम का मंदिर देखा होगा कि टेलीविजन पर चल रहा था कि कैसा स्वरूप है, कैसा बन रहा है। काशी चले जाइए, काशी विश्वनाथ, सोचा था आपने ऐसा काशी विश्वनाथ मंदिर? और महाकाल का बदलता हुआ दिव्य और भव्य स्वरूप उज्जैन में आपने देखा। यह देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मिसाल नहीं है तो क्या है? जो लोग मोदी जी की आलोचना करने वाले लोग हैं, उनसे मैं इस सवाल को पूछना चाहता हूं, इसे क्या कहें? क्या इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहें? क्या कहना चाहिए? दूसरी चीज, एक जमाना था
जब नेता आंदोलनों से पैदा हो, फिर नेता कुछ ऐसे भी पैदा हुए जो जातीय गोलबंदी के आधार पर कुछ जातियों के नेता बने। नेता गढ़ने वाले आंदोलन बंद हो गए और जातीय गोलबंदी से जन्मे नेताओं की एक अपनी सीमा होती है, एक हद तक ही वह जा सकती। इस दौर में नरेंद्र मोदी इकलौते नेता हैं जो लोक इच्छा से सत्ता के शिखर पर है। लोक इच्छा से सत्ता के शिखर, हमारी कृपा से नहीं है, आपकी कृपा से नहीं है, जन सामान्य की लोक इच्छा से, उसके कारण सत्ता की वो शिखर। और मित्रों, जब देश भ्रष्टाचार में खौल रहा था और कुशासन का चौतरफा बोलबाला था, लोगों की उम्मीदें उफान मार रही थी, होना चाहिए, तो उसे नरेंद्र मोदी मिल गए। होना चाहिए कुछ, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मिल गए मोदी। वह किसी आंदोलन से नहीं आए। आंदोलन नकारात्मक भाव ध्वनित करता है। मोदी जी जन उम्मीदों के शिखर पर लोक इच्छा से पहुंचे, और यह लोक इच्छा भी ईश्वरीय कृपा है। इस पर भी कोई डिबेट करना चाहे, लोक इच्छा यही ईश्वरीय कृपा है, सबको नहीं मिलती। अनावश्यक कुछ लोग परेशान रहते हैं, परेशान नहीं रहना चाहिए, सबको नहीं मिलती। ऐसे जनाधार वाले सदियों में पैदा होते हैं मेरे बहनों भाइयों, सदियों में पैदा होते हैं ऐसे जनाधार, जिनकी लोक स्वीकृति कच्छ से नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख से कन्याकुमारी एक जैसी। मैंने तो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, और मैं तो तब की बात बतला रहा हूं जब उस समय भी मुझे आश्चर्य हुआ जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट हुए थे जनता के सामने। उस समय भी उनके साथ मुझे आने जाने का मौका मिला है, बाद में भी आने जाने का। अद्भुत जनता का इसमें, और इतिहास ऐसे नेता का मूल्यांकन उसके निर्णयों, प्रयोगों और सुधारों से करता है। मोदी जी का भी करेगा, कर रहा है और करेगा, क्योंकि मोदी जी ने भारतीय राजनीति में विचार, संवाद, प्रक्रिया, विमर्श और पहचान सब कुछ बदल दिया है। करीब 450 देखते देखते देश अलग तरह से अब सोचने लगे। सोच के अर्थ और आयाम या डायमेंशन ही बदल गए। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसकी कुंजी यदि आपको कहीं ढूंढनी है तो इस किताब को पढ़िए, उसको कुंजी आपको इस किताब में मिल जाएगी, जिसका आज मैं लोकार्पण करने के लिए यहां पर आया। इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि इस किताब को पढ़िए, गुजराती जो संस्था। और नरेंद्र मोदी जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कई वर्षों तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। यानी प्रधानमंत्री के तौर पर 8 साल और मुख्यमंत्री के तौर पर 12 साल। इन 20 साल की सुशासन यात्रा का लोखा जोखा प्रस्तुत करती है यह किताब मोदी एट 20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इस किताब में देश की जानी मानी 22 हस्तियों के लेख, आपने कुछ हस्तियों के यहां पर व्यूज, उनके विचार को आपने सुना है, जिन्होंने उन कारणों का पता लगाया कि कैसे भारतीय राजनीति में मोदी जी का उदय एक धूमकेतु की तरह हुआ। धूमकेतु जानते हैं ना, गुजरात के लोग नहीं जानते धूमकेतु। और वे अगले 20 सालों में एक फेनोमेनन यानी परिघटना बन गए। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना। करीब 450 पेज की यह पुस्तक 5 खंडों में विभाजित, 400 पेज की यह पुस्तक 5 खंडों में विभाजित, जिसमें मोदी जी के सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक नीतियों, शासन की शैली और उनकी वैश्विक अपील पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
लिखने वाले या तो मोदी जी के साथ दस्तों से काम करने वाले राजनेता हैं, अमित भाई ने भी लिखा है, या अपने अपने विषय के विश्लेषक लोग हैं। दीपेंद्र मिश्रा जी ने भी लिखा, जो कि उनके साथ लगभग 6-7 वर्षों तक लगातार प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किन किन लोगों ने लिखा है, क्योंकि आपने वीडियो में देखे। मोदी जी की इस यात्रा के पीछे की तपस्या और उनके फैसलों की बुनियाद, यह यदि आपको समझनी है, यह बताने का काम यह पुस्तक करेगी मोदी एट 20। एबी शेट्टी जैसे डोमेन विशेषज्ञ आपने देखा होगा इसी वीडियो में, जो बताते हैं कि कोविड महामारी से निपटने का उनका तरीका क्या था। नंदन नीलकेणी हैं जो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो यहां मुख्यमंत्री से तब भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रयोग करते हैं। लोक कल्याण की उन दृष्टि वास्तविकता के धरातल पर कैसे उतरती है, नृपेंद्र मिश्रा जी इस पर रोशनी डालते हैं। मोदी जी की असाधारण क्षमता पर सुधा मूर्ति जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यपालक निदेशक दुर्जीत भल्ला, ओलंपिक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया, अभिनेता अनुपम खेर, धर्मगुरु जगतगुरु जबकि वासुदेव जी महाराज आदि ने शासन चलाने की मोदी जी की दैवीय क्षमता का आकलन किया है। किताब की भूमिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ली। किताब पढ़ने से पता चलता है कि मोदी जी कैसे अपने आइडिया ऑफ इंडिया को आकार दे। हो सकता है कि टर्मिनोलॉजी कुछ अलग हो। आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे वो आकार दे रहे हैं, यह पुस्तक को पढ़ने से समझ में आती। और यह किताब मोदी जी के विजन को डिकोड कर और यह समझने में मदद करती है कि कैसे देश के लोगों के लिए बड़े सपने देखने का उनमें साहस, सपने देखने का मित्रों साहस भी चाहिए। रात में सोए सोए जो सपने आ जाते हैं ना, वो पूरे नहीं होते। तो समझकर भी सपने देखे जाते हैं, और सपने देखने का भी साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए। रणनीति और कूटनीति में भी उन्हें महारत। कई बार कई मोर्चों पर विजय हासिल करने के लिए, फतह करने के लिए रणनीति की भी आवश्यकता होती है, कूटनीति की भी आवश्यकता होती है। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी देखा होगा, ताकत पड़ी है। जहां रणनीति की जरूरत पड़ी है रणनीति, जहां कूटनीति की जरूरत पड़ी है कूटनीति। रास्ता क्या है? राजनेता आमतौर पर लोगों की बड़े लक्ष्य की तरफ देखने के लिए प्रेरित करते। ऐसे लक्ष्यों में आश्वासन ज्यादा और विश्वास कम। मोदी जी का आश्वासन उम्मीद और विश्वास के एक सूत्र पर केंद्रित है, जहां से प्रतिध्वनित होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, मोदी जी का आश्वासन उम्मीद और विश्वास के एक सूत्र पर केंद्रित है, जहां से प्रतिध्वनित होता है, मोदी है तो मुमकिन। यह महज नारा नहीं है, अब देश के अवाम को भी लगने लगा है कि वह जो कहता है, उसके जो सपने हैं वो पूरे हुए हैं, अब पूरे हो कर रहे हैं। भाईचारा और सहअस्तित्व, भाईचारा और सहअस्तित्व भारतीय चिंतन के पुराने तत्व रहे। मोदी जी ने विदेशों के साथ जो भरोसे का रिश्ता बनाया है, उससे समूची दुनिया महामारी और युद्ध के वक्त भारत को देख रही। मित्रों, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आप सब दिग्गज लोग यहां पर बैठे हैं, जानते होंगे। कौन नहीं सच्चाई को स्वीकार करेगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, भारत बोल रहा है। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की प्रतिष्ठा, यह भारत की हैसियत है। भाईचारा और सह अस्तित्व भारतीय चिंतन के पुराने तत्व। मोदी जी ने विदेशों के साथ जो भरोसे का रिश्ता बनाया, उससे समूची दुनिया महामारी और युद्ध के वक्त भारत को तोड़ दी। अब उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता,
कोविड के दौरान क्या काम किया, लगभग 100 देशों को किस तरीके से मदद मुहैया करें। यहां वैक्सीन बनती नहीं, वैक्सीन बनाना ही नहीं शुरू किया, बल्कि दुनिया के 100 देशों को वैक्सीन की मदद पहुंचाई है। भविष्य में चाहे कितनी बड़ी क्राइसिस पैदा हो जाए, ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी नहीं पड़ने वाली है मेरे बहनों में। मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व ने उसे निराश नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुखता देते हुए उन्होंने अपने वैश्विक भूमिका निभाई। नेशन फर्स्ट की भावना के साथ उन्होंने देश की सीमाओं और सैनिकों के साथ भी कभी कोई समझौता नहीं की। यह बात मैं कह रहा हूं, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कह रहा हूं, जो हकीकत जानता हूं उसमें मैं कह रहा हूं। अपने प्रशासनिक कौशल से उन्हें संकट और चुनौतियों से कैसे मुकाबला किया, यह किताब इसका भी रहस्य खोली। प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में एक परीक्षा की घड़ी उनके सामने आई। लद्दाख बॉर्डर पर चूमर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भारतीय सीमा में घुस गए। भारत की जमीन पर बन रही सड़क का काम रोक दिया। यह प्राय होता भी रहता है, पहले भी चलता, और 1500 भारतीय थे, उनको थोड़ी देर के लिए रोक दिया। अब विवाद बातचीत चलती रही 16 दिनों तक। उसी महीने चीन के राष्ट्रपति आए हुए थे, शी जिनपिंग भारत। अहमदाबाद में राष्ट्रपति के साथ उनकी एक इनफॉर्मल अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शी जिनपिंग को समझाया और बिना शर्त जो हमारे मजदूरों को रोक रखा था उनको शी जिनपिंग को छोड़ने की आग्रह उन्होंने की। शी जिनपिंग राजी हो गए। अब आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात, आए थे, कहा राजी हो। बहनों भाइयों, समझौते कभी अपने से कमजोर लोगों के साथ नहीं होते। कोई अपने कमजोर लोगों के साथ समझौता नहीं करता है। समझौते अपने बराबर वालों से हो। बात भी सुनी जाती है तो अपने बराबर वालों की बात सुनी जाती है, कमजोर की कोई बात नहीं सुनी। अब इससे अनुमान लगा लीजिए। इस मामले में मोदी केवल एक राजनयिक संबंधों पर नहीं वह निर्भर नहीं थी, वे चीनी राष्ट्रपति के दौरे पर उनके सामने इस मुद्दे पर दृढ़ता से पेश है। अपने इसी सांगठनिक कौशल से उन्होंने भाषाई और क्षेत्रीय राजनीतिक दौर में अपनी राष्ट्रव्यापी छवि बनाई। आजादी के बाद इस देश में प्रधानमंत्रियों की पहचान भी उत्तर दक्षिण के खांचों में बांट करो। ये उत्तर हैं, ये दक्षिण। आजादी के पहले तो आपको समस्त फलक पर राष्ट्रीय नेता मिलेंगे, पर नेहरू के बाद क्षेत्रीय पहचाने चमक उठी। अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय नेता, नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक यही क्षेत्रीय राजनीतिक पहचान भारतीय राजनीति की मुख्य धारा मानी, क्योंकि कांग्रेस के क्षरण के बाद ये भी खुश होकर आ गया। ये है, ये देखिए कहां से आवाज आ रही है, ये आकाशवाणी है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक यही क्षेत्रीय राजनीतिक पहचान भारतीय राजनीतिक धारा की राजनीति की मुख्य धारा मानी जाती, क्योंकि कांग्रेस के क्षरण के बाद राजनीति की मुख्य धारा की नदी सूख गई। पिछले 3-4 दशक में भारत की जटिल क्षेत्रीय राजनीतिक अस्मिताएं किसी एक नेता में इस कदर घनीभूत हुई, यानी केंद्रित हुई, उसने मुख्य धारा को आत्मसात करने की कोशिश की। पर नरेंद्र मोदी ने इस शून्य को खत्म किया। क्षेत्रीय भाषाई राजनीति की पेचीदा ढांचे को तोड़कर पूरे भारत की राजनीतिक सर्वानुमति के वह प्रतीक बने। और नॉर्थ ईस्ट की जितनी उम्मीदें हैं उतनी ही लद्दाख को, उतनी ही कच्छ को और उतनी ही ध्रुव दक्षिण को यानी साउथ को भी मोदी जी से उतनी ही उम्मीदें हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र की कम हो, एक क्षेत्र की अधिक। नरेंद्र मोदी बहुत व्यवहारिक है। चुनावों की भारी जीत भी उन्हें प्रभावित नहीं है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं ना, देख रहा हूं 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार अमित शाह जी गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बन गए हमारे बाद, तो उसके बाद गए और बताया कि हम पार्टी का मेंबरशिप कैंपेन, सदस्यता अभियान प्रारंभ करने जाते। अब देखिए, अब ये प्रधानमंत्री बने हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद, 1.5 महीना बाद मुश्किल गुजरा, वहां भी उनको सुझाव दे रहे हैं। सुझाव क्या दे रहे हैं? देखो भाई, पुराने तरीके से नहीं कर पाओ, नया तरीका अपनाओ। तो इन्होंने पूछा अमित भाई ने क्या रणनीति है, तो उन्होंने रणनीति पूछी। तो इसके बाद मिस्ड कॉल के आधार पर सदस्यता अभियान शुरू करने का उन्होंने एक नया आइडिया दे दिया कि मिस्ड कॉल के आधार पर। ये नई आइडिया, इसके पहले नहीं होता था।
और उन्होंने हर मिस कॉल को वेरीफाई करने को भी कहा। ऐसा नहीं है कि तो वेरिफिकेशन नहीं होना, वेरीफाई करो ताकि फर्जी से रास्ता न। यह उनके सांगठनिक क्षमता की पहचान। भाजपा जनसंघ की विकास यात्रा में धारा 370 का समापन आप जानते हैं कैसा मुद्दा था, लंबे समय से चला रहा था। कोई ये कल्पना नहीं करता था कि ये कभी ये धारा 370 समाप्त हो पाएगी, लेकिन धारा 370 समाप्त हो गई। अब आज ये छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जम्मू कश्मीर में आज कोई बहुत बड़ी वारदात नहीं होती, लेकिन कुछ घटनाएं हो रही हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। तो बीमारी बहुत लंबी, तो समय तो लगेगा ना, लेकिन काफी हद तक रिकूप कर गया है जम्मू का। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारत के रवैये को डिजाइन और रीडिफाइन, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का क्या रवैया होना चाहिए, इसको रीडिजाइन किया है और रीडिफाइन। तो आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि गुजरात में एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। वो साफ तौर से इस बात का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर किताब जो लिखी गई है उसमें किस प्रकार के संस्मरण है। लेकिन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एक अन्य कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, जहाँ पर वो वर्चुअली जो PM जय MA कार्ड को वितरित करेंगे और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद है। सुधाकर, किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर समग्र तौर पर गुजरात की बात की जाए तो स्वास्थ्य के चिंता को लेकर कम से कम एक मन से वो दिक्कतें हटती हुई नजर आएंगी लोगों की। आखिर हमको जो